Hello and welcome to Pro Knowledge Center. Today we are seeing most important MCQs. बहुत important MCQs आज हम देखेंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो कि जुडिशरी, यूपीएससी, एमपीएससी, क्लैट, बैंकिंग, सीएमए, सीएस, सीए फाउंडेशन, सीएस, सीएसडब्ल्यूटी एंड ऑल सिमिलर टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस यूजफुल रहेंगे. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, लीगल टर्मिनोलॉजी के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, लॉ ऑफ टॉट से लिए गए ये क्वेश्चन है विथ explanation we are going to see. Only thing is I am not going to answer is you will be seeing it, you will be watching it, and then you will see in the next slide you will see the answer. That way we are going to see. We begin. Here is a contestant. He says that he is ready with 90%. He has studied everything. So let us check whether what will be the score of ultimately at the end of the session. Okay, quiz master has given challenge and he has accepted it. Prepare, let us prepare for success. अगर ये बात हमारी होती है, हम भी उसी तरह से चलते हैं, तो we will come to know about it. बढ़ते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस तरह से एक मोटिवेशन होता है सभी के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिल सकते हैं. और ये पार्ट 1 है. देयर विल बी वेरियस पार्ट्स ऑफ सच टाइप्स ऑफ MCQs and other topics also. Similarly, MCQs also. Now we begin with that. Who among the following is competent to enter into a contract? Contract कौन enter कर सकता है? ग्रेजुएट होना चाहिए, इंसॉल्वेंट होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया क्या है? ABCD. Let us move to the answer. A person who is measure of sound mind not declared disqualified from contracting by anyone. ये इसका आंसर. Agreement in restraint of marriage is either valid, void, voidable, none of the above. एग्रीमेंट इस तरह से बनाया ताकि मैरिज नहीं होगा, वेडिंग नहीं होगा, तो लॉ सेज नो, इट इज व्हाट? वाइड. सेक्शन 26 of the Indian Contract Act states that every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is to be void. वो एनफोर्स नहीं होगा, वाइड होगा. दिस इज अबाउट सेम थिंग अबाउट सेक्शन 28 ऑल्सो. यहाँ पे अगर हम 28 करते हैं तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो जाएगा, because there is a freedom to practice any profession, trade and all this. So there is no question. Now next, which article deals with power of High Court to issue certain writs? हम डे टू डे बात करते हैं रीड्स के बारे में भी. तो हाई कोर्ट कैन इशू रीड्स. तो कौन सा सेक्शन, कौन सा आर्टिकल है? लेट अस सी. 226. आंसर इज सी. Now, retirement age of High Court judges in India. Here, it was 60 prior to 1963. Now, what it is? 62 years is the answer. The age was increased to 62 1963 by way of 15th. This is about the retirement age of High Court judges. Then appointment and conditions of the office of a judge of High Court are written in article. Which article? Let's see. 217. 270. Who is empowered to issue writ according to the Indian Constitution from the following? PM, President of India, Supreme Court of India, Governor of. If you have answered it, well and good. Let's see. Supreme Court of India. Very good.
दिस सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे हम, उसको समझेंगे भी और सेक्शन से शुरू करेंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो भी जानेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो आंसर क्या है इसका, आपने नोट कर लिया होगा। अभी देख लेते हैं आंसर क्या है। सेक्शन, if two or more parties enter into a contract to do or not to do something, if an event which is collateral to the contract does or does not happen, it amounts to a contract। है नहीं होना है, इस पर आधारित है कॉन्ट्रैक्ट। तो करना है या नहीं करना है, जो एक्टिविटी है वो जो एक्शन है, तो देयर फॉर इट इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर, व्हाट इज द एग्जाम्पल, ए पेड 18,000 टू एक्स वाई, कंपनी है, प्रीमियम पे किया, बदले में एक्स वाई ने कहा कि एक्स वाई अश्योर्ड ए दैट इफ हिज हाउस इज बर्न, उसका हाउस अगर बर्न हुआ तो दे विल पे हिम 80 लैक्स, जो वैल्यू रहेगा, जो भी रहेगा, जितने का इंश्योरेंस लिया होगा। तो देयर फॉर दिस इज द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, इसे हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये हो गया इसके बारे में सेक्शन 31 के बारे में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील्स विद, अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बहुत वास्ट है, जो कि जितने भी सेक्शंस उसमें इस हिसाब से, एंड इट डील्स विद मेनी थिंग्स, बट हियर व्हेन इट कम्स हियर, तो अभी हमको क्या देखना है, इनहेरिटेंस से डील करता है नहीं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से नहीं, बिकॉज देर इज सेपरेट एक्ट फॉर दैट। देन ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, तो बचा क्या है फिर, enforcement of obligations arising from contract. It is my view. Let us see. I also formed a view based on this reading. Okay. Enforcement of obligations arising from contract is the correct answer. Good. Enforcement of obligations, rights and obligations. उसमें कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखे होंगे वो एनफोर्स होते हैं कोर्ट के थ्रू। जस्ट इन रेम मीन्स लीगल राइट अगेंस्ट, यहाँ पे 4 ऑप्शंस, अगर पर्सन के अगेंस्ट है, या प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करना है, या राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज है, या नन ऑफ द अबव, जस्ट इन रेन। देखते हैं, और राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, ओनरशिप ऑफ हाउस, एग्जाम्पल के तौर पे आप घर में रहते, घर आपका है, तो यू हैव गॉट राइट टू स्टे इन दैट, नो वन हैज गॉट राइट टू स्टे देयर, देयरफॉर इट इज अ राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। पर आपने रेंट एग्रीमेंट किया है, रेंट पे घर दिया है, तो उसको जो ये है वो राइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगा, ये राइट वो नहीं रहेगा, रेंट का वो राइट निकल जाएगा। ये राइट कैसा रहेगा, राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, बिकॉज यू आर ओनिंग हाउस। लॉ ऑफ टॉट डील्स विथ, टॉट के बारे में हमने बहुत जानकारी ली है पहले भी और लेते रहते हैं। टॉट तो सिविल रॉन्ग के तौर पे ज़्यादा है। आई विल नॉट स्पीक, आई विल जस्ट पहले इधर बात करेंगे, फिर देन एक्सप्लेनेशन विल फॉलो। लॉ ऑफ टॉट डील्स विथ क्राइम, ट्रेसपासिंग, रिकवरी ऑफ ड्यूज, एनफोर्समेंट ऑफ मॉर्गेज। किससे ये डील करता है, देखते हैं आंसर क्या है। आपने नोट कर ही लिया होगा, आपने टिक भी कर लिया होगा। ट्रेसपासिंग एंड निग्लिजेंस से टॉट डील करता है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द 10th शेड्यूल वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट, 10th शेड्यूल जो है वो किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया। लेट अस सी द आंसर। दिस मैन इज, आई थिंक ही इज रिप्लाइंग, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, लेट्स सी। 52nd amendment is the reply. It means the answer is D. Good. Proposal when accepted becomes, प्रपोजल है एक्सेप्ट हो गया, ऑफर जो होती है वो प्रपोजल के फॉर्म में होती है, एक्सेप्ट हो गई। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये सब टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स दीज आर यूज्ड, कॉन्सेप्ट्स है जो कि कॉमनली यूज्ड है। अब प्रपोजल, एक प्रपोजल होता है, कोई ऑफर होती है, वो एक्सेप्ट होती है, तो क्या होता है, उसको प्रॉमिस कहते हैं।
Sorry, let me just check the answer, then it is the answer. I have just expressed my view. Oh, it's correct answer. It's a promise. Let us proceed further. When two persons agree upon the same thing in the same sense, it is said that such persons have given their. दो व्यक्ति अगर एक बात पर सहमत होते हैं तो क्या कहना चाहिए उसे कि वो व्यक्ति की बातों पर सहमत हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसमें ही सब आ गया है, ये सेंटेंस में ही सब कुछ है. व्हेन टू पर्सन्स एग्री, एग्री मीन्स उन्होंने क्या दिया होगा? कंसेंट. इट इज नोन एज कंसेंट. In case an agreement is not enforceable by law, it is termed as. अगर एग्रीमेंट एनफोर्सिबल नहीं होगा लॉ में तो वो होगा वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी. व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इन इंडिया? हाई कोर्ट जज 62 years and Supreme Court judge 65. An agreement between two or more parties is enforceable by law. Now, it was earlier we saw that wide agreement because it was not enforceable by law. Here it is enforceable. So I think let us see the answers. Let us see the correct answer. क्या रहेगा आंसर इसका? enforceable है तो कॉन्ट्रैक्ट. नेक्स्ट देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जियोपार्डी. इसका मतलब क्या है? और डबल जियोपार्डी मीन्स एक बार अगर पनिशमेंट हो गई एक ऑफेंस के लिए तो सेकंड टाइम नहीं होती है. ये जनरल इसका ये है. क्या आंसर है वो देख लेते. नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस. एक गुनाह के लिए दो बार कन्विक्शन नहीं होगा, दो बार पनिशमेंट नहीं होगी. पार्ट 3 बहुत पढ़ते हैं हम पार्ट 3 के बारे में. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इस बात से डील करता है. पार्ट 3. पार्ट 2 वो भी है आगे. पार्ट 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स में जो राइट्स है कौन कौन से फ्रीडम्स दिए हैं, और फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम का ही पार्ट है. तो इसमें हम क्या कहते हैं? टू प्रैक्टिस प्रोफेशन है या टू स्पीच, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये फंडामेंटल इसमें आ गए, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है. दीज आर ऑल दी थिंग्स विच आर देयर इन पार्ट 3 फंडामेंटल राइट. ये फ्रीडम में आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. Which day is celebrated as Constitution Day? 26th November. The answer. The guarantee which extend to a series of transactions. Indian Contract Act में is provided that गारंटी अगर इशू होती है, श्योरिटी अगर गारंटी इशू करता है तो अगर वो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होगी, मतलब एक हर ट्रांजैक्शन उसमें अलग अलग गारंटी नहीं लेना होगा, तो उसे हम कहेंगे से दैट इज कंटिन्यूइंग गारंटी. Tort is a civil wrong where compensation is the remedy. इसमें क्रिमिनल में नहीं होता है, पनिशमेंट नहीं है, प्रोसिक्यूशन नहीं है, लाइबिलिटी होती है. Which of the following articles of Indian Constitution can President of India can impose presidential rule in state? 356. 350. A person who receives money or anything by mistake or under coercion should. अगर किसी को पैसे मिले हैं या प्रॉपर्टी मिली है, कोई चीज मिली है किसी की, तो उसे क्या करना चाहिए? यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें रखना चाहिए या वापस करना चाहिए या उसको यूज करना चाहिए. तो आंसर विल बी रिटर्न इट. यस टू रिटर्न इट, वापस देना.
द फेस, फेस, एब इनिशियो का मतलब क्या है? फ्रॉम द बिगिनिंग. लेट मी जस्ट go to the go through the answer from the beginning. Good. Number of languages in the 8th schedule of Indian Constitution. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेजेस दी है वो कितनी है, बता सकते हैं? देख लीजिए. 22. अ पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड. फिर से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गए. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से हमने देखा प्रॉमिसर, प्रॉमिस का जो पार्ट है वो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. अभी अ पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड. जो प्रपोजल कर रहा है, वो प्रपोज दे रहा है, वो कौन है? हु इज दैट पर्सन? प्रॉमिस. प्रपोजल इनटू प्रॉमिस, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी. अगर प्रपोजल को प्रॉमिस में कन्वर्ट करना है तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए. द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल बिकम्स कंप्लीट व्हेन इट. जब कम्युनिकेट करते हैं प्रपोजल को तो कब कंप्लीट होता है वो? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड. डैमनम साइन इंजुरिया, लॉ ऑफ टॉट में हमने देखा है, ये टॉट का पार्ट है. डैमेज, यहाँ 4 ऑप्शन है. 4 में से जो सुटेबल ऑप्शन है वो है डैमनम साइन इंजुरिया का. मोस्ट सुटेबल प्रॉपर इज डैमेज विदाउट इंजुरी. डैमेज हुआ है बट इंजुरी मीन्स लीगल राइट इन्फ्रिज नहीं हुआ है, तो उसे हम कहते हैं डैमेज विदाउट इंजुरी. इन द मीनिंग, इफ द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट इज नॉट सर्टन. अगर एग्रीमेंट सर्टन नहीं है, मतलब वेग कोई चीज बनाई है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस वेग है, देन हाउ, क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग ही नहीं रहेगा. मीनिंग नहीं होगा तो इज वाइड. अनसर्टन एग्रीमेंट वाइड हो गया. द पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट टू असिस्ट द कोर्ट इज कॉल्ड. फ्रेंड ऑफ द कोर्ट जो होता है वो है एमिकस क्यूरी. मैंने पहले ही आंसर बता दिया. दिस इज व्हाट द रिप्लाई इज देयर. अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट अमाउंट्स टू. प्रॉमिस किया है विदाउट एनी इंटेंशन टू फुलफिल इट. मुझे फुलफिल नहीं करना है, हाँ मैं प्रॉमिस कर दिया, एंड बदले में कुछ, कॉन्ट्रैक्ट के बदले में कुछ ये भी आ गया होगा, कंसिडरेशन भी आ गया होगा, बट मेरा इंटेंशन फुलफिल करने का नहीं था, देन इट अमाउंट्स टू प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग. अगर परफॉर्म नहीं करना था तो प्रॉमिस नहीं करना था, प्रॉमिस किया लेकिन परफॉर्म करने के इरादे से नहीं किया, देन इट इज फ्रॉड. इज डिफाइंड इन सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. जो है वो दैट पर्टेन्स टू, दैट सेज अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट अमाउंट टू फ्रॉड. फ्रॉड से बात. नाउ जितने भी हमने सवाल देखे और उसमें हमने जवाब देखे, उनके जवाब और एक्सप्लेनेशन देखा, उसमें काफ़ी हद तक जो जवाब आपके भी माइंड में थे वो सही तरीके से थे. तो यू आर एन अमेजिंग पार्टिसिपेंट. आपने इसमें बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया. आप बड़े अच्छी तरीके से इसमें हम इसी तरह से बहुत सारे जो पार्ट 1 से लेके, ये पार्ट 1 है, पार्ट 10 भी हो सकता है, 2, 3, 4 at intervals for the benefit of large number of students. We will come with so many MCQs apart from normal जो हमारे सेशंस है जो चल रहा है उसके अलावा. एंड इफ सब्सक्राइब, इफ इट इज़ पॉसिबल टू सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो उसमें एक मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने. थैंक यू वेरी मच.